Good morning, my dear students and respected faculty members. Before start the problem, again I repeat, please upload our YouTube link and our videos link with your students groups and with your faculty groups for the students those are staying at home due to COVID-21. So again I start the topic today, and that topic is very interesting topic, and in that topic we will cover first about the side view of our object. Clear? So how we can cover our side view means side view of the object, how we can cover that. So basically for that already we have the two planes already we discussed. We have a one is vertical plane, and due to vertical direction that is vertical plane, and due to horizontal direction this plane is as a horizontal plane. Okay, so when we take a view of our object, suppose our object is in that case, suppose our object is a cube, our object is a cube, and when we cover the view of cube, then definitely we can cover from front view and from top view. When we see the object 90 degree with the picture plane or projection plane, so we can cover this is the front view, this is the top view of our object. So up to here we cover only two views, front view as well as top view. Now where we cover the third view, because our object is in 3D, three different dimensions or maybe same dimensions in the case of cube. So how we can cover the 3D view means all three views on that planes. Clear? So on the VP we cover the front view, on the HP we cover the top view. Up to here we will discuss. We are discussing up to here. Okay. So now today we will discuss about the side view. Where we cover the side view. So it means for side view we also assume we have one plane is more. For the side view we will also assume we have one plane is more, and that plane divide your quadrant model into equal two parts. It means that plane divide your first quadrant into equal two parts. It means suppose like this. So it means for that, for cover the side view of your object, I place here one plane is more, and that plane you can say this is the profile plane. That is what? That is the PP, profile plane. It means when I divide the first quadrant into two parts, when I divide the first quadrant into two parts, then that plane divided into two parts is called as a PP, as a profile plane. Clear? So for that case, what we will cover here? We cover here. We have the front view is on VP, and we have the top view is on HP, and we have the side view. We have the side view is on PP. And after taking the projection on PP, we rotate the profile plane into anti-clockwise direction in that case. Clear? Then the side view is here, and that is on PP. Front view is here, front view this side on VP, top view this side on HP, and the side view is here, this side on PP. Clear? Okay. So see what is the concept of that model in 2D. 2D के अकॉर्डिंग इस मॉडल का concept आपके पास क्या रहेगा? So as per the 2D concept, we divide this model into equal. Suppose as per the 2D, we have here first the whole plane is as a vertical plane. Clear? The whole plane is as a vertical plane first. Clear? And this plane in vertical direction, due to that we can say that is a vertical plane. Clear? And now here see here, this is a table, and the table glass now work as a horizontal plane. The table glass work as a horizontal plane. So it means if the table glasses work as a horizontal plane, and this acrylic sheet work as a vertical plane. Clear? So it means in that case this is our VP and this is our HP.
This is our VP and this is our HP. Clear? So front view of your object, is here. Now if the front view of your object is here, it means that is on VP, and the top view of your object is here, it means that is on HP. Clear? So for the side view, we divide our total vertical plane. Listen, we divide our total vertical plane as well as horizontal plane into equal two parts like this. Like this. Clear? Again see it. We divide our total vertical plane as well as horizontal plane into equal two parts. So when I divide these planes into two parts, it means the part dividing or the sheet dividing that plane, we assume that is the PP. PP means that is the PP, and PP means that is a profile plane. PP full form, that is a profile plane. So it means what I do here? Here I divide our first quadrant into equal two parts. I divide our first quadrant into equal two parts. And behind the first quadrant we have here, that is a second quadrant. So if I divide the first quadrant into equal two parts, same like that I divide the second quadrant into equal two parts. So first quadrant into equal two parts and second quadrant also divided into equal two parts. Clear? So it means what I want to say up to here, that is, it means in that case we have a here the 2D model. अगर हमने यहाँ तक कवर किया था कि we have a 2D model is here, and in that model we have the HP and here we have the VP, vertical plane. In 2D we cover this thing already. We have the horizontal plane as well as we have the vertical plane. Up to here we cover that thing. So it means after that we divide your first quadrant into equal two parts, and the plane is divided, that quadrant is called as a PP profile plane. Clear? So it means अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपका ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको इक्वल दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ. It means like this. I divide your first quadrant into equal two parts. क्लियर? तो आपको ये चीज यहाँ पे नजर आ रही होगी कि ये पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया. क्लियर? इक्वल टू पार्ट्स. सो इट मींस नाउ दिस इज योर, अगर मैं कहूँ दैट इज योर पीपी प्रोफाइल प्लेन, दैट इज योर प्रोफाइल प्लेन. क्लियर? तो अगर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिवाइड किया है, ठीक है, देन लाइक ए गुड फादर हमें चारों क्वाड्रेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. जैसे एक किसान के अगर 4 बेटे हैं, ठीक है, तो वो चारों बेटों के में लैंड की डिवीजन करना चाह रहा है, तो वो चारों बेटों को इक्वल डिवीजन देगा. तो सेम लाइक दैट हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेम हम सेकंड क्वाड्रेंट को भी उतने ही 2 पार्ट्स में डिवीजन देंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट को भी हम वैसे ही डिवीजन देंगे इक्वल टू सेम पार्ट्स, और ऐसे ही हम फोर्थ क्वाड्रेंट को भी इक्वल टू 2 डिवीजंस करेंगे, 2 डिवीजंस में डिवाइड करेंगे. सो इट मींस अप टू हियर अभी तक हमारे पास क्या था, अभी तक हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था सपोज. क्लियर? और ये हमारे पास था सेकंड क्वाड्रेंट, और ये था हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट अप टू हियर, और अप टू हियर जहां तक अभी हमने क्वाड्रेंट मॉडल पढ़ा था तो फोर्थ क्वाड्रेंट है. अगर मैं ब्लू लाइंस को फॉलो कर रहा हूँ, ब्लू प्लस को फॉलो कर रहा हूँ, इट मींस मैं सिर्फ 2 प्लेन को फॉलो कर रहा हूँ, एचपी और वीपी, और एचपी और वीपी की अकॉर्डिंग मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्वाड्रेंट्स ले रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ. ऑलरेडी वी कवर द पोजीशन ऑफ द क्वाड्रेंट मॉडल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लियर? तो अप टू हियर यहाँ तक हमने पढ़ा था, लेकिन अभी तक दोनों क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या था कि सिर्फ और सिर्फ एचपी और वीपी थे. ठीक है? और वी नो ऑलरेडी द एचपी इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द टॉप व्यू ऑफ योर ऑब्जेक्ट एंड द वर्टिकल प्लेन ऑलवेज यूज्ड फॉर द फ्रंट व्यू ऑफ योर ऑब्जेक्ट. But now we need our object is in 3D. Suppose we have a cube and the cube is in 3D. So on the vertical plane we will cover easily front view. On the HP we will cover easily top view. But where I cover the side view. So for side view I divide our quadrant model into again equal 4 parts. तो ये
चार पार्ट्स में जो क्वाड्रेंट मॉडल को अब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो डिवाइड करने वाली लाइन आएगी दैट इज से एज ए पीपी प्रोफाइल प्लेन, दैट इज सेड एज ए पीपी प्रोफाइल प्लेन, क्लियर। एंड प्रोफाइल प्लेन ऑलवेज यूज्ड फॉर टेकिंग द साइड व्यू ऑफ योर ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो इसके बाद प्रोफाइल प्लेन लेने के बाद अब हमारे पास चार क्वाड्रेंट की नंबरिंग तो होगी थी, तो इट मींस अगर उस किसान ने चारों बेटों में लैंड इक्वल डिवीजन दी है, तो चारों ऑलरेडी जो पहले चार लैंड थी उन लैंड्स को ऑलरेडी उसने नंबर दे दिया, लैंड नंबर 1, लैंड नंबर 2, लैंड नंबर 3 और लैंड नंबर 4। अब उस लैंड के अंदर वो डिवीजन कर रहा है, ठीक है। जब चार प्लॉट उसने कट किए बड़े बड़े, ये मान लो कि ये 1000 गज का प्लॉट था, ये भी 1000 गज का, ये भी 1000 गज का, ये भी 1000 गज का। अब 1000 गज के प्लॉट को सेंट्रली इक्वली डिवीजन दे दी प्रोफाइल प्लेन के थ्रू, ठीक है। तो पहले जो चार प्लॉट थे उनकी तो नंबरिंग हो चुकी है ऑलरेडी 1 2 3 4, ठीक है। तो अब जो 1000 गज का जो पहला प्लॉट कट हुआ, इसके बैक साइड पे जो आया नेचुरली 4 तक 4 तक नंबर तो दे चुका है, दोबारा 1 2 3 4 में तो दे नहीं सकते, तो डेफिनेटली इसके पीछे भी कौन सा नंबर हुआ, 5, इसके पीछे हुआ 6, इसके पीछे 7 और इसके पीछे 8। So it means what is the mean of that? Mean of that is this one कि after 1 we have the 5, after 2 we have the second, or you can say behind the third we have the 7 and behind the 4 we have the 8. Clear? Clear? So when that number is given, then your quadrant model not having 4 parts now. Quadrant means 4. So your quadrant model not 4 parts now. Now your quadrant model divided into 8 parts. Now your quadrant model divided into 8 parts. Due to that we can say that is a octant model. That is a octant model. Octant means 8. Octant means 8. So now your model divided into 8 parts. Due to that we can say this model is as a octant model. ठीक है। प्रैक्टिकली मैं थोड़ा आपको करके बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह ये चीज पड़ी है कि ऑक्टेंट मॉडल कैसे हुआ। सो सी द प्रैक्टिकली फ्रॉम दिस आई विल ट्राई कि आपको समझ आए, क्लियर। तो ये आपका क्वाड्रेंट मॉडल था, सी हियर प्लीज फिक्स द कैमरा ऑन मॉडल हियर। सो नाउ दिस इज योर क्वाड्रेंट मॉडल। तो सबसे पहले आपका ये क्वाड्रेंट मॉडल था, अभी अगर मैं इसको सपोज ऐसे ही कवर कर दूं तो ये आपका क्वाड्रेंट मॉडल था। इन दैट मॉडल दिस इज योर वर्टिकल प्लेन एंड दिस बोर्ड इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, clear. So as per the concept of that, you are the observer, in front of you this is the VP and this is the HP, and as per the observer the object in front of VP and on HP, it means that is the position of the first quadrant, clear. Okay, now your first quadrant I divide here for find out its side view। जैसे हमें फ्रंट व्यू के लिए एक वर्टिकल प्लेन अज्यूम करना पड़ा, टॉप व्यू लेने के लिए एक हॉरिजॉन्टल प्लेन अज्यूम करना पड़ा, ऐसे ही साइड व्यू लेने के लिए भी हमें एक प्लेन अज्यूम करना पड़ेगा। और जो वो प्लेन हमने अज्यूम किया फॉर फाइंड आउट द साइड व्यू ऑफ योर ऑब्जेक्ट, दैट प्लेन वी कैन गिव द नेम ऑफ दैट प्लेन इज एज ए पीपी प्रोफाइल प्लेन। उस प्लेन को नाम क्या दिया, दैट इज एज ए प्रोफाइल प्लेन, एंड दैट प्लेन डिवाइड योर फर्स्ट क्वाड्रेंट इनटू इक्वल टू पार्ट्स फर्स्ट, क्लियर। सो इट मींस ये जो हमारे पास प्रोफाइल प्लेन था, वर्टिकल प्लेन था, इसको हमने जहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन जो नीचे है इसको हमने इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस प्लेन को, ये जो नीचे टेबल है पूरा ग्लास का, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लाइक दिस। तो जब हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, व्हेन वी डिवाइड दैट इनटू इक्वल 2 पार्ट्स, देन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, clear. So from that side this is your first quadrant and behind this we have the second quadrant here. तो सेम अगर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिवाइड किया, तो जैसे एक किसान के 4 बेटे की एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो पहले बेटे को इक्वल डिवीजन देता है तो उसके पीछे दूसरा बेटा है वो इक्वल, उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हमने इसको भी इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इट मींस मैंने सेकंड क्वाड्रेंट को भी इक्वल 2 पार्ट्स में डिवीजन दे दी, क्लियर। और ऐसे ही फर्स्ट के नीचे कौन सा पार्ट है, फर्स्ट के नीचे उधर हमारे पास 4th पार्ट है, ऑन दैट साइड वी हैव द 4th। तो दिस प्लेन इज एज ए सपोज व्हिच प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसके नीचे जो हमारे पास पार्ट रहा उसको भी हमने इक्वल 2 पार्ट्स में डिवीजन दे दी लाइक दिस।
तो ये जो प्लेन था ये फर्स्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ और इसके नीचे वाले प्लेन को भी इक्वल 2 पार्ट्स में हमने डिवीजन दे दी, सपोज लाइक दिस। क्लियर? तो ये फोर्थ पार्ट भी 2 पार्ट्स में डिवीजन में मींस डिवाइड हो गया 4 पार्ट में, ये 4 क्वाड्रेंट भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्लियर? ऐसे ही थर्ड सेकंड के नीचे इधर मेरी तरफ पीछे बोर्ड के सेकंड के नीचे हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट था। तो जैसे हमने फर्स्ट और फोर्थ और सेकंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऐसे हम थर्ड को भी इधर पीछे की तरफ से 2 पार्ट से डिवीजन दे देंगे फ्रॉम दैट साइड। क्लियर? सो इट मींस दैट इज division in 2 parts. So it means now your whole model converted into octant model. Whole quadrant model converted into octant model. And octant model normally we use where we want to draw the side view of your object. Because for side view we assume one plane and that plane set as a profile plane. And that plane divide the all 4 quadrants into equal 2 parts. तो it means किसी भी क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट लाई कर सकता है। तो किसी भी क्वाड्रेंट में जैसे हमने पॉइंट को लाई करवाया था, लाइन को लाई करवाया था, तो उसका फ्रंट और टॉप व्यू लिया था। ऐसे ही आपका 3D ऑब्जेक्ट भी किसी भी पार्ट में लाई कर सकता है। मे बी फर्स्ट ऑक्टेंट, maybe it lie in 5th octant, maybe in 6th octant, maybe in 2nd octant, maybe in 3rd octant, maybe in 7th octant, maybe 8th octant and maybe हमारे पास 4th octant। तो किसी भी ऑक्टेंट में लाई कर सकता है। तो अगर आपका 3D ऑब्जेक्ट किसी भी ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑक्टेंट मॉडल, दैट 3D मॉडल, वी रिक्वायर्ड इट्स साइड व्यू आल्सो। Clear? So for that we divide your quadrant model into equal 4 parts again. Then that quadrant model covered in the octant model, converted into the octant model, you can say. Clear? And that octant model used for the front view, top view as well as side view of your object. And the front view always is on BP, top view always on HP, and the side view always on PP, means side view always on profile plane. Clear? So this is the concept of octant model. तो आज हम इस केस में यही कवर करेंगे। केस हम कवर करने जा रहे हैं। We have the next case number 10, and in that case we have the profile plane. Case number 10, we have the profile plane, और profile plane के अकॉर्डिंग लाइन की प्रॉब्लम को कवर करेंगे। Clear? So in the problem number 10, or you can say in the case number 10, he said the line parallel to PP. The line is parallel to PP. पहले हम PP के साथ parallel की कंडीशन करते हैं। The line is what he said, the line is parallel to PP. ठीक है? So line, now the concept is this, line parallel to PP. PP means profile plane. PP means profile plane, P-R-O-F-I-L-E, profile plane, that said as a PP. Okay, so we covered that thing is here. Please fix on the camera again on the octant model. So in that case, we have here, मैं इसमें ऐसे रखता हूँ ताकि ये गिरे ना. So in that case, we have here VP. This is your vertical plane. You can already see from here. This is VP. And this plane is horizontal plane is as a what? This is our now HP. So this is VP, and suppose this plane is now we have here HP. इस plane को मैं assume कर देता हूँ. Now this is your what? This is your, तो मैं इसको ऊपर ही रखूँगा, आप कवर कर दो इसको. So this is your HP. It means this is your horizontal plane, or I can write here also. This is your HP. Clear? So this is your HP. And that is parallel to the ground plane like that. So this is your HP. अब मैंने HP यहाँ रख दिया। अब ध्यान से समझना सारा कॉन्सेप्ट प्लीज। सारे कॉन्सेप्ट को कैमरा और आपकी आईज इस ऑक्टेंट मॉडल पे फिक्स होनी चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। So this is your HP. This is your HP. This one is parallel to horizontal plane, or you can say parallel to ground. So this is HP, and this is in the vertical direction. This is VP. So I divide the HP and VP into equal 2 parts. So that plane said as a PP, profile plane, that is as a
PP, you can see here that is as a PP profile plane. So it means profile plane divide the vertical plane and horizontal plane into equal two parts. Clear? So this is the profile plane. Now we have the case, this one, the line parallel to PP. The line is what? He said the line is parallel to PP. It means we have the line here and this is your line again, and that say parallel to PP. Now say it, if your line in this direction, if I ask your line is in this direction, then the line is what? No doubt the line is parallel to PP in that case again. No doubt the line is what? The line is parallel to PP in that case. And in that case, the line is also parallel to VP because the line is perpendicular direction. And on the HP, that is perpendicular. On the HP, that is what? On the HP, your whole line is what? That is perpendicular to HP. That is perpendicular to the horizontal plane. Clear? So that is perpendicular to HP. Okay. But now he say, suppose he say the line is parallel to PP. ठीक है, ये सिंपल केस हो जाता है. ये जो केस अभी मैंने ऐसे रखी है लाइन, दैट इज वेरी सिंपल केस. इस केस में क्या होता है कि फ्रंट व्यू में भी आपको क्या होता है, एचपी में पड़ी है तो एक्स वाई के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन दिख जाती, और साइड व्यू में भी आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख जाती है इन द साइड व्यू, और टॉप व्यू में एक पॉइंट आ जाता है. इट्स वेरी सिंपल केस. ठीक है, तो इतना सिंपल केस वो ज़्यादातर देता नहीं है एग्जाम में. मैं थोड़ा सा केस को टफ लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ आए. ठीक है, सो इन दैट केस suppose he said, normally जो केस आता है, suppose he said the line parallel to PP but one of its end A. ध्यान से समझना इस बात को. He said the line is parallel to PP but one of its end A lie on HP. Lie on HP. This end A lie on HP. We have the HP is here. Lie on HP and the other end B lie on VP. So this is the case. One end A lie on HP and other end A B, not A B, other end B lie on VP. Other end B lie on VP. It means B is here and A is on HP. Clear? And after that he said the whole line is what? The whole line is parallel to PP. तो पूरी line profile plane के साथ क्या है? Parallel है. Like this. That is parallel to PP. Clear? So that is parallel to PP. And one end is on HP and other end is on VP. It means line lie here. मैं यहाँ पे lie कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. It means like that. This is like that. It means your line is here. Yes, good. Now your line is here. अब आपकी line यहाँ lie कर रही है. Suppose one end A is on HP and other end is on VP. And your whole line is lie here like this, like this. One end A is on HP, other on VP, and the whole line is parallel to PP. So this is the which plane? This is the profile plane, and the whole line is what? That is parallel to your PP. Profile plane के साथ parallel है. वो ये क्या है? Clear? So up to here, I think you will clear what is the position of the line. Okay. So how we can draw this? How we can draw this? In that case, again we draw XY line. So in that case, first we draw again XY line जैसे हम previous cases में करते हैं. Same ऐसे ही पहले हम XY line को draw करेंगे. So step by step आपने problem को draw करना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए. तो first we draw XY line like this. Okay. So first I draw the XY line. See here. First I draw the XY line. Clear? तो जैसे हमारे पास HP और VP, जैसे हमारे पास HP और VP जहां मिलते थे, दोनों प्लेन जहां मिलते थे, वहां कौन सी लाइन प्रोड्यूस होती थी? XY लाइन. वहां कौन सी लाइन प्रोड्यूस होती थी? XY लाइन. और XY लाइन क्यों? क्योंकि HP VP मिल रहे हैं और VP पे नॉर्मली हम क्या लेते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन. इट मींस Y डायरेक्शन. और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नॉर्मली क्या लेते हैं? H डायरेक्शन. इट मींस horizontal direction, it means X direction. Clear? So X axis normally on the horizontal plane and Y axis on the vertical plane. So due to that
where the both lines are intersect, both planes are intersect to each other, HP and VP, they produce a XY line. XY line. Clear? But here I give the name of that line is ZY line. Here I draw one line is more and the name of that line is as a ZY line. Now where is the ZY line? इस चीज को ध्यान से पहले समझना पड़ेगा. Now see here, where the both planes, please see here, where the both planes are meet to each other, जहाँ पे HP और VP मिले, जहाँ पे हमारे पास दोनों प्लेन मिल रहे हैं, कौन से? This one is your HP and this one is your VP. So where the both planes are meet to each other, they produce a XY line. Already we covered this thing. They produce a which line? They produce a XY line where the HP and VP meet. And same like that, where the VP and PP, where the VP and PP are meet to each other, they also produce one line. Here, they also produce one line. You can see here, there, that is there. They produce also one line where the vertical plane and profile plane meet to each other. They produce one line more. It means that line is which? That line is this one. Because this is your first whole quadrant, then divided into equal two parts, first or second. Clear? So this is ZY line. Clear? So in that case, where the both planes are meet to each other, VP and PP, they produce a ZY line. And normally we cover which axis on the vertical plane, Y axis. And for PP किस डायमेंशन को कवर करने के लिए लिया है? PP हमने कवर करने के लिए साइड व्यू को. इट मीन साइड व्यू पे कौन सी डी जाती है? 3 डायमेंशनल. अभी तक कौन सी बची? Y डायमेंशन तो ले ली थी VP पे, X डायमेंशन ले ली थी हमने HP पे, ठीक है. और तीसरी डायमेंशन कौन सी बची 3D में? Z डायमेंशन, दैट इज द Z एक्सिस. Y axis, X axis और third axis is the Z axis. Suppose you have a object is here. अगर आपके पास ये object है आपका यहाँ पे, अगर मैं कहूँ you have the object is here. Suppose object is Q. Then this is the Y axis, this is the X axis, and now this is the Z axis. So we have the three axes: Z axis, Y axis, X axis and Y axis. करेक्ट? तो तीसरी डायमेंशन कौन सी बची? Z axis. तो PP नॉर्मली कवर, क्योंकि PP में ये वाली इसकी ब्रेड्थ की डायमेंशन जा रही है, यू कैन से विड्थ वाइज डायमेंशन जा रही है, एंड दैट इज विच डायमेंशन? दैट इज इन दिस डायरेक्शन, एंड इन दिस डायरेक्शन वी कवर विच डायमेंशन? वी कवर द Z डायमेंशन. तो इट मींस द PP प्लेन नॉर्मली कवर फॉर द Z एक्सिस लाइक ए VP एंड लाइक ए HP. जैसे VP कवर करते थे Y एक्सिस के लिए, HP कवर करते थे X एक्सिस के लिए, ऐसे PP कवर किया Z एक्सिस के लिए. So due to that, where the both planes are meet, which planes? Y axis and Z axis. तो दोनों प्लेन जहाँ मीट कर रहे हैं Y एक्सिस वाइज और Z एक्सिस वाइज, तो दोनों प्लेन जहाँ मीट कर रहे हैं वहाँ एक लाइन प्रोड्यूस होगी. और कौन से प्लेन मीट कर रहे हैं? Z एक्सिस and Y axis. So due to that we give the name of that line is ZY line. Due to that we will give the name of that line is ZY line. Is it clear? So we have the two lines as per the octant model now, that is the XY and ZY line. Clear? For cover the all 3D, all 3 dimension or all views of your object, front view, top view as well as side view. So we cover the profile plane for that. This is the basic concept of the profile plane, and that profile plane divide your coordinate model now into octant model. Octant means 8. Octant model. Clear? Now we start the case. In that case, he said we have a line AB is, suppose, and one of point A lie on HP and other on VP. A point lie on HP and other on VP. And he said the line is parallel to PP. The line is what? Parallel to PP. The line is what? Parallel to PP. अब अगर लाइन PP के ऊपर पैरेलल है तो ऑलरेडी अप टू हियर वी विल कवर when the line is parallel to any plane then its two shape lie on it, and when we start the problem of line then always start from its two shape. It may be lie on HP,
it may be lie on VP, it may be lie on PP. And in that case your whole line is what? Your whole line is parallel to PP. So it means इसकी यहाँ से ट्रू शेप देखी ऑब्जर्वर में, तो इसकी पूरी शेडो कहाँ गई? PP के ऊपर, प्रोफाइल प्लेन के ऊपर. And after taking the projection on profile plane, we rotate the PP into what? Into anti-clockwise direction here. तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन लेके जा रहे हैं हम? इधर को ऐसे जा रहे हैं ना, पीछे को आ रहे हैं. सो इट मीन्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट PP always rotate anti-clockwise direction and HP always rotate clockwise direction. क्लियर? तो PP रोटेट होके जब इधर चला गया तो ये ट्रू लेंथ आपको प्लीज, जब PP रोटेट होके सी अगेन सी नाउ प्लीज listen, go outside and listen. So in that case, when the line is parallel to PP, then its true shape lie on the profile plane. Suppose I give the example here. Here we have the PP is here. See what is the example? The PP is here, profile plane is here. As per the model, if I divide that means, then we have the VP definitely. Then we have this part now for the PP. ये PP के लिए बन जाएगा, and this part now for the HP. Correct? So if I cover in the 2D, then after division of the ZY line with the ZY line, our whole quadrant divided into 4 parts. So this is for VP, this is for HP, and this is for PP. Clear? So in that case, and you see. So in that case, we have the profile plane is here, and I want to show you on that board. It means the PP is here. Line जो है profile के साथ parallel है, इसके साथ parallel है, and one end of your line on VP. Or suppose my arm or maybe my hand is as a HP, and other end is on HP, and the whole line is parallel to PP. So it means line is like that here. Now if the line is parallel to PP, then its true shape, the true shape of the line lie on the profile plane. Clear? And after taking the projection on PP, this is the concept as per the BI 696. After taking the projection on PP, we rotate the PP anti-clockwise direction. तो PP anti-clockwise direction में rotate होके इधर चला जाएगा like this. So it means here is the true shape of your line. In that case, the true shape of the line on PP here now, like this. Clear? So in that case, the line is here. See practically again here, please. In that case, the one point of your line lie on HP. एक point HP पे lie कर रहा है. यहाँ practically देखो फिर एक point HP पे lie कर रहा है, एक VP पे lie कर रहा है. The point A is on HP and the B is on VP. Clear? अब अगर हम इसको सिर्फ फ्रंट में ड्रॉ करते हैं, suppose if we want to draw only in front, then where? Then it's suppose point A is here only. A is on XY. A dash front view है तो A dash. But the line not parallel to VP. Parallel होती तो definitely जितनी हाइट है उतनी हाइट पे हमें 90 डिग्री B ऊपर दिख जाता. But now we set the line one point on HP and other on VP. Due to that, the line making the angle with both planes, one point on HP and other on VP. Due to that, the line is also making the angle with VP. Vertical plane के साथ line ये वाला angle बना रही है. You can see this angle from the vertical plane and this angle from the horizontal plane. तो it means line दोनों plane के साथ angle बना रही है. तो ना तो इस केस में हमें front में true length नजर आएगी, ना ही इस केस में हमें top में true length नजर आएगी. Because when the angle of the line is increased, then the length of the line is decreased. Clear? तो ना तो हमें फ्रंट में ट्रू लेंथ नजर आ रही है, ना ही टॉप में ट्रू लेंथ नजर आ रही है. बट इन दैट केस द लाइन इज पैरेलल टू PP. लाइन इज व्हाट? लाइन इज ही सेड पैरेलल टू PP. तो डेफिनेटली प्रोफाइल प्लेन पे ट्रू लेंथ नजर आएगी. तो जब प्रोफाइल पे ट्रू लेंथ नजर आई तो कैसे नजर आ रही है? यू कैन सी फ्रॉम हियर. आप यहां से देख सकते हो कि प्रोफाइल पे ट्रू लेंथ कैसे नजर आ रही है. इन द प्रोफाइल सपोज वी हैव द point B is here, see it, and the point A is here. Clear? And the line lie like that here. So when I take the projection from the A, तो A की projection 90 डिग्री अगर मैंने ली यहाँ से, तो A का projection 90 डिग्री किधर चला गया? See it please.
ए का प्रोजेक्शन 90 डिग्री अगर मैंने इधर से लिया तो ए का प्रोजेक्शन हमारे पास, प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ मैं, बड़ी अच्छी तरह कोऑर्डिनेट मॉडल पे समझो इस चीज़ को, क्योंकि ये दिमाग में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो ए का प्रोजेक्शन हमने 90 डिग्री, योर ए पॉइंट इज हियर, सपोज ए इज हियर, तो ए का प्रोजेक्शन मैंने 90 डिग्री अगर लिया तो ए का प्रोजेक्शन किधर चला गया, ऑन दिस साइड ऑन पीपी, तो पीपी पे मुझे ए यहाँ पे नजर आया, ए इज ऑन पीपी हियर। क्लियर? कैसे प्रोजेक्शन लिया मैंने, यहाँ से मैंने 90 डिग्री इसका रेड मार्कर से ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने 90 डिग्री इसका प्रोजेक्शन ये लिया, तो आपको ए पॉइंट जो है वो 90 डिग्री यहाँ पीपी के ऊपर यहाँ पे नजर आ गया, लाइक दिस फ्रॉम दिस साइड, एंड दैट ए दिस वन, दैट ए सीन फ्रॉम विच व्यू, साइड व्यू, दैट इज सीन फ्रॉम विच व्यू, साइड व्यू, दिस ए, ये पीपी साइड व्यू के लिए ना, तो दैट इज फॉर साइड व्यू, सो साइड व्यू पॉइंट विद डबल डैश, दिस इज द एब्रिविएशन अगेन, टॉप व्यू विदाउट डैश, फ्रंट व्यू with dash, this is the front A, so front view with dash, A dash, and top view A without A dash. Clear? So this is the abbreviation, front view with dash, top view without dash, and side view double dash with the double dash. Okay, so we locate the point in the side view here first. Clear? After that he said the point B is on where, the point B is on VP point, please give me here, not A, here we have the B, please give me so here we have the point B is here, B on VP like this, the B is here on VP like this, and A is on HP. Clear? तो अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन लेता हूँ, मेरे पास इसकी प्रोजेक्शन लेता हूँ, तो टॉप, अगर मैं टॉप की पहले बात करता हूँ, तो टॉप में A यहाँ देखा, और जहाँ पे B दिख रहा है, जहाँ पे B दिख रहा है, उस B को अगर हम टॉप में क्या करेंगे, कैसे देखेंगे उस B को, उस B को हम टॉप में 90 डिग्री देखेंगे, सीधा नीचे की तरफ, लाइक दिस, we see that B point 90 डिग्री like this। तो जब B की 90 डिग्री मैंने प्रोजेक्शन ली यहाँ पे सीट, तो जब B की 90 डिग्री प्रोजेक्शन ली, now the B point projection fall here on where, on HP, तो 90 डिग्री प्रोजेक्शन गई। और ऐसे ही जब मैंने A पॉइंट की टॉप से प्रोजेक्शन ली, सपोज, अब ध्यान से देखो, A पॉइंट की जब टॉप से मैंने प्रोजेक्शन ली, तो A पॉइंट की प्रोजेक्शन यहाँ पे आई थी टॉप से, फ्रॉम द टॉप, फिर देखो फ्रॉम द टॉप A is here and from the top B is on XY, because B is on VP and B is on XY, तो what is the line, that is A to B, A to B टॉप में एक लाइन दिखेगी हमें HP के ऊपर, yes, so we draw the projection of that line A to B on HP like this। तो हमने A से लेके B की लाइन जो है उसकी प्रोजेक्शन HP के ऊपर ड्रॉ कर दी like this, suppose। क्लियर? See it now please। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों प्रोजेक्शन आ रही हैं, अब ध्यान से फिर समझो। Now the A is on HP, A यहाँ पे HP पे लाई कर रहा है, on HP, that is here। Clear? Now your line is in that position, the A is on HP and the B is on VP and the whole line is parallel to PP। So when I take the projection A from the top, the A is here, and B from the top, then the B is on XY because the B is on VP। क्लियर? तो टॉप में मेरे पास कितनी लाइन दिखी, दैट इज A to B, ऑन विच प्लेन, ऑन HP, ऑन विच प्लेन, ऑन HP। तो इट मीन्स टॉप में मेरे पास जो प्रोजेक्शन आई, दैट इज ओनली, इफ आई ड्रॉ हियर, दैट इज ओनली A to B and that is where, that is on HP, that is where, that is on HP। आई विल ट्राई, मैं इसको ब्लैक मार्कर से ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर फिर बाद में नजर आए। सो दैट इज ऑन HP, ओके, दिस वन इज ऑन HP लो। क्लियर? सेम ऐसे जब मैंने फ्रंट से देखा तो फ्रंट की प्रोजेक्शन मुझे कहाँ पे दिखी, सेम ऐसे VP के ऊपर, ऑन वेयर, ऑन VP लाइक दिस। सी इट। सो अगेन सी, द पॉइंट A इज ऑन HP, तो टॉप से देखा तो A HP पे, B VP पे पड़ा हुआ है, B ऐसे VP पे लाई कर रहा था। नाउ योर पॉइंट B इज ऑन VP, तो B की प्रोजेक्शन ली तो वो XY पे दिखी, क्यों, B VP पे लाई कर रहा था, जहाँ VP खत्म हो रहा है नीचे XY है, तो XY पे दिखी। सो A इज हेयर इन द टॉप व्यू एंड B इज हेयर इन द टॉप व्यू, तो A और B की प्रोजेक्शन टॉप में हमारे पास आ गई यहाँ पे।
ऐसे फ्रंट में जब हमने देखा तो 90 डिग्री जब हमने फ्रंट से देखा, देन बी ऑन वी पी, तो बी कहाँ पे देखा, पॉइंट ऐसे लाई कर रहा था, 90 डिग्री फ्रंट से देख रहे हो आप, ऐसे इधर से फ्रंट से, तो बी आपको यहाँ दिखा ऑन वी पी। अब ए एच पी पे है, इस केस में फ्रंट में ए एच पी पे है, तो ए की प्रोजेक्शन कहाँ दिखी, दैट इज ऑन एक्स वाई हियर। सो नाउ इन द फ्रंट व्यू द ए इज हियर, सो दैट इज front view, so due to that this is a dash, so a dash is here and the b dash is here in the front view, clear। but in the both case हमने दोनों projection ढूंढ ली, a b in the top and a dash b dash in the front, but in the both case both are in not true length, both are not in true length। why so? because the line making the angle with hp as well as with the vp, so when the angle of the line is increased then the length of line is decreased, so angle hp के साथ भी बन रहा है और vp के साथ भी बन रहा है, तो ना तो फ्रंट में ट्रू लेंथ दिखेगी ना ही टॉप में। in that case definitely he can say find its true length on the profile plane and already the line is parallel to what, parallel to pp, तो प्रोफाइल प्लेन के ऊपर डेफिनेटली इसकी ट्रू लेंथ इधर नजर आएगी। अब हमने देखना कि प्रोफाइल प्लेन पे ऊपर ट्रू लेंथ कैसे नजर आई। अब इस पॉइंट को समझो प्लीज। प्रोफाइल प्लेन पे अभी अगेन जब हमने इसकी प्रोजेक्शन ली अगेन फ्रॉम बोथ पॉइंट्स, फ्रॉम बी की इधर पॉइंट बी था यहाँ पे ऑन वीपी, तो जब बी की 90 डिग्री प्रोजेक्शन ली तो बी की प्रोजेक्शन इधर चलेगी ऐसे, बी प्रोजेक्शन इज हियर, और जहाँ वीपी है, जहाँ वीपी है पीछे कौन सी लाइन है, जेड वाई, क्योंकि वीपी मीट कर रहा है पीपी के साथ, सो हियर वी हैव द जेड वाई, तो जेड वाई लाइन के ऊपर आपको कौन सा पॉइंट इधर दिखा, नाउ यू कैन से कैपिटल बी बट डबल डैश बिकॉज दैट इज इन द साइड व्यू, क्लियर। और कैपिटल क्यों आया, क्योंकि प्रोफाइल पे ट्रू लेंथ दिखेगी। अब यहाँ पे हमें ये क्या दिखा, दिस इज आल्सो हियर ए डबल डैश, क्लियर। ये यहाँ पे कैसे दिखा, सी इट, कि ये ए डबल डैश हमें यहाँ पे कैसे नजर आया, सी इट दिस वन, because the line is here, again see the line is here, so when you see from the side then the projection of the point A fall like this on the profile plane, clear, and projection B also fall like this on the profile plane, clear, but the point B on VP, due to that B lie on ZY line, तो इट मीन्स अब आपका बी जो है हमें जेड वाई लाइन के ऊपर इधर यहाँ कहीं लाई करता हुआ, अगर मैं सपोज ऐसे कर दूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आ रहा है, तो आपका ए और बी सपोज हियर, तो बी आपको यहाँ पे साइड व्यू में बी डबल डैश लाई करता हुआ नजर आया। पहली बात तो ये, बिकॉज जहाँ वीपी खत्म हो रहा है वहाँ पीछे वो मिल रहा है जेड वाई से, तो वो जेड वाई पे नजर आया। सेम ऐसे जब वीपी खत्म हुआ तो किससे मिला, जेड वाई से, और सेम ऐसे दूसरा पॉइंट ए पड़ा एचपी पे, और एचपी जहां खत्म हो रहा है वहां भी नीचे कौन सी लाइन है, जेड वाई, क्योंकि पीपी प्लेन वहां खत्म हो रहा है, वहां पे पीपी खत्म हो रहा है, तो दूसरा पॉइंट हमें यहां लाई करता नजर आया। एचपी जहां खत्म हो रहा है पीछे कौन सी लाइन थी, एक्स वाई, एचपी जहां खत्म होता है उधर कौन सी लाइन होती है, एक्स वाई, तो इधर हमें एक्स वाई के ऊपर यहां पे हमें नजर आया ए डबल डैश, क्लियर, बिकॉज द पॉइंट ए लाई ऑन एचपी, इफ एनी पॉइंट ए लाई ऑन एचपी देन इट्स व्यू लाई ऑन द एक्स वाई लाइन, ऑलरेडी वी कवर, क्लियर, तो हमें वो वहां पे नजर आ गया, क्लियर, इन द टॉप व्यू, इन विच व्यू टॉप व्यू। नाउ सी ये कॉन्सेप्ट हो कैसे रहा है, तो अब हमारे पास ये पूरी लाइन हमें यहाँ पे ऐसे मिल जाएगी, दैट इज डेफिनेटली ए टू, यहाँ पे मिलेगी हमें एंड दैट मीट विद ए टू बी, तो ए टू बी से मिलती हुई हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, अब वी हैव ए ट्रू लेंथ ऑफ आवर लाइन एंड दैट मीट विद हियर ए टू बी लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे इसको मिलाऊं तो ये मुझे ऐसी यहाँ पे मिलती हुई लाइन नजर आएगी एंड दैट इज ए टू बी in which view, in the side view, like this, clear। तो अब मेरे पास यहाँ पे अब तीन लाइंस आ गई, I have the projection of 3 lines here and the true length lie here। अब इस चीज को समझो, true length lie here,
the point A lie on HP and the B on VP, and when you see the projection top, then that is from A to B on the HP. When you see the projection from front, that is A and B now on VP here. ठीक है, लेकिन ये दोनों में ही ट्रू लेंथ नहीं नजर आई, ना तो टॉप में ना ही फ्रंट में, बिकॉज लाइन HP से भी एंगल बना रही है और VP से भी. बट इन दैट केस द लाइन इज पैरेलल टू PP, ड्यू टू दैट इट्स ट्रू लेंथ ऑन PP. तो ट्रू लेंथ कहाँ पे आई? PP के ऊपर नजर. ठीक है, एंड आफ्टर टेकिंग एज पर द कंसेप्ट ऑफ द ड्राइंग, व्हाट इज हियर, after taking the projection on what? After taking the projection on PP, we rotate the PP anti-clockwise direction. Clear? Again see, after taking, please see here, again see, after taking the projection on PP, we rotate the PP anti-clockwise direction. So it means its true length lie in the which view? Side view. So it means you find here the true length of your line in the side view, and that is definitely A to B, because A lie here on which plane? HP, and B lies on which plane? VP. So its true length is in the front view. मैं थोड़ा इसको मार्क कर दूँ, मार्क थोड़ा लेट चल रहा है. So true length, where its true length lie in the side view, definitely in that case the true length on the side view, it means that is on which plane? Profile plane. So its true length of your line, when the line is what? When the line is parallel to PP. But in that, where is the front view of line and top view of line? Front view और top view of line कहाँ होगा? देखो, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ होगा? लाइन पैरेलल तो PP है, लाइन पैरेलल तो PP है, बट सपोज ही से दैट हैविंग सम डिस्टेंस फ्रॉम PP से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लाइन इधर गेन कर रही है इधर की तरफ, तो डेफिनेटली जितना डिस्टेंस लाइन का PP से इधर होगा उतनी ही लाइन ZY से इधर नजर आएगी फ्रंट में, एज वेल एज आल्सो इन द टॉप व्यू. क्लियर? तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस सपोज उसने दिया 40 mm, तो हम ZY से 40 mm एक डिस्टेंस लेंगे सबसे पहले और एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देंगे XY को कट करता हुआ. ठीक है, अब उस प्रोजेक्टर के ऊपर लाइन की प्रोजेक्शन आएगी. A पॉइंट यहाँ आ रहा था और B पॉइंट यहाँ आया, सो वी सी ड्रॉ द 90 डिग्री प्रोजेक्शन लाइक दिस. Because why 90 degree? Because we see the projection in orthographic projection and that is always at 90 degree. तो हमें फ्रंट व्यू में लाइन यहाँ से A से लेके B तक ये लाइन नजर आई. In which view? In the front view we have the line is here, and that is in which view? That is in the front view. We cover this. That is in which view? That is in the front view. We cover this. So we have this line in the front view. Clear? We have here A dash and here P dash, because that is the front view and that is double with dash, and that is what? That is MTL, not true length in the front view. On which plane? Vertical plane. Clear? So you cover the line in the front view. Now how we cover the line in top view? How we cover the line in top view? अब A पॉइंट आपके पास, listen, A पॉइंट आप ध्यान से समझना इस चीज को. A पॉइंट लाइन का कहाँ लाई कर रहा है? A पॉइंट आपका VP पे लाई कर रहा है, सॉरी पॉइंट B कहाँ लाई कर रहा है? VP पे. इसलिए VP पे लाई करता होने के कारण वो हमें साइड व्यू में कहाँ पे दिखा? ZY पे. ठीक है, तो अगर पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ ZY पे आया तो वो टॉप में कहाँ लाई करता हुआ नजर आएगा? दैट इज ऑन HP. दैट इज ऑन HP. और HP के ऊपर वो नजर आएगा कि नहीं? HP के ऊपर डायरेक्ट नजर नहीं आएगा, बिकॉज इट्स लाई ऑन VP. तो इसलिए इसका टॉप व्यू कहाँ लाई करता नजर आएगा? दैट इज ऑन XY. दैट इज ऑन XY. ठीक है, तो पॉइंट A जो है वो उसको, इसको B जो है, B को जब हमने टॉप से देखा तो इट्स टॉप व्यू लाई ऑन XY. XY पे नजर आ गया, लेकिन लाइन क्या थी? XY पे तो नहीं थी, ZY पे नहीं थी. लाइन तो पैरेलल टू PP थी एंड हैविंग 40 mm इन फ्रंट ऑफ PP. तो ये ZY से कितना इधर नजर आ गया पॉइंट में B? 40 mm इधर. ऑन विच प्लेन? ऑन XY, क्योंकि जहां नीचे VP खत्म हो रहा है नीचे कौन सी लाइन है? XY लाइन. तो 40 mm इधर XY पे नजर आएगा. इट मीन्स पॉइंट A की है
अब वही पॉइंट हमें, पॉइंट दो है अलग अलग, एक नहीं है दो है, लाइन ऐसे पड़ी है और उस लाइन का पॉइंट ए हमें कहाँ नजर आ रहा है। अब ध्यान से समझना इस बात को, लाइन अगर ऐसे पड़ी है तो उस लाइन का पॉइंट ए हमें कहाँ नजर आ रहा है, ए इज ऑन एच पी, लेकिन लाइन पैरेलल टू बीपी है तो इसलिए बी जो बी है, बी का प्रोजेक्शन भी कहाँ फॉलो करेगा, ए के ऊपर ही, क्योंकि 90 डिग्री लाइन पैरेलल टू पीपी है, ठीक है। तो बी का प्रोजेक्शन भी यही फॉलो किया। तो अब हमें जो टॉप का बी है, एक्स वाई के पॉइंट ए की हमें दिखेगा, लेकिन फ्रंट में वो हमें पहले क्या दिख रहा है, ए, और टॉप में जब देखेंगे तो वो क्या दिख रहा है, बी। तो ए डैश ऊपर आ गया और बी हमारे पास अब नीचे आ गया। पॉइंट ए की आप कंफ्यूज मत होना, ए की पॉइंट है तो ए और बी दोनों क्यों आ गए, क्यों, क्योंकि फ्रंट में वो एज ए दिख रहा है एक्स वाई पे और टॉप में वो एज ए बी दिख रहा है एक्स वाई के ऊपर। क्लियर, ओके। क्योंकि लाइन ए की कंडीशन में पड़ी, अगर ए इधर होता और बी इधर होता तो डेफिनेटली फिर बी इधर आता और ए इधर आता, अलग अलग हो जाते। लेकिन अब वो पैरेलल टू पीपी है, इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस व्यू से जो नजर आ रहा है उसको पहले ड्रॉ करेंगे। ए इधर से पहले नजर आ रहा है तो ए ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बी तो ऊपर चला गया फ्रंट में, और ऐसे टॉप में पहले नजर आ रहा है बी, तो बी ड्रॉ करेंगे क्योंकि ए तो एच पी भी आगे निकला है और जब रोटेट करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा। अब देखना कि ए कितना नीचे चला गया, ए कितना नीचे चला गया। इस चीज को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ पे तीनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों प्लेन कहाँ पे हिंज्ड हो रहे हैं, अब ये चीज ध्यान से समझना, तीनों प्लेन हिंज्ड हो रहे हैं एच पी, वीपी और पीपी। तीनों प्लेन कहाँ पे, एक जगह पे कहाँ पे मिल रहे हैं, तीनों प्लेन एक जगह पे मिल रहे हैं ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस पॉइंट वेयर द पीपी मीट, वेयर द वीपी मीट एंड वेयर द एचपी मीट। हियर फ्रॉम साइड पीपी मीट, फ्रॉम दिस साइड एचपी मीट एंड फ्रॉम दिस साइड VP meet and that our meeting point is here, यहाँ पे हिंज हो रहे हैं। तो यहाँ से ही इस हिंज पॉइंट से दोनों प्लेन रोटेट हो रहे हैं, PP इधर रोटेट हो रहा है, इस हिंज पॉइंट से PP, अगर मैं HP को ऐसे रखूँगा तो इस, आप ध्यान से देखिए इधर यहाँ, और इस हिंज पॉइंट से आपका जो PP है वो इधर रोटेट हो गया और जो HP है वो नीचे रोटेट हो गया ऐसे। तो जब HP नीचे रोटेट हुआ तो HP की ये जो प्रोजेक्शन है वो नीचे जाती हुई ऐसे नजर आएगी। Clear? So in that case, all planes are hinged here. All planes are hinged here on this point. On this point. यहाँ पे तीनों प्लेन hinged हो रहे हैं, VP, PP और HP. Clear? और PP क्या हुआ था? PP के ऊपर जब ये प्रोजेक्शन आ गई थी, फिर हमने PP को क्या किया था? एंटी क्लॉक रोटेट करके इधर ले गए थे। सॉरी, ध्यान से समझो, PP को हम एंटी क्लॉक इधर रोटेट ले गए। क्लियर? लेकिन लाइन पड़ी कहाँ हुई है, लाइन इधर तो नहीं पड़ी हुई, लाइन तो हमने बोला था कि इधर पड़ी हुई है ऐसे, यहाँ पे इस पोजीशन पे पड़ी हुई है। तो इट मीन्स अगर मैं इधर एंटी क्लॉक लेके जा रहा हूँ और वापस इधर लेके आ रहा हूँ तो इसको क्या लेके आ रहा हूँ, क्लॉकवाइज इधर लेके आ रहा हूँ और लाइन को उसकी पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ। दो चीज़ें हो रही है, एक तो पहले मैं जो इस ट्रू लेंथ को इधर ले गया था एंटी क्लॉक रोटेट करके, उसको लाइन की सही पोजीशन पे लेके आने के लिए मैं PP को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ पहले। कहाँ तक, वेयर दैट इज कट विद द ZY plane. So it means what I do here, I fix the PP is from here. तो यहाँ तीनों प्लेन, यहाँ जैसे वहाँ XY होती थी तो यहाँ तीनों प्लेन इकट्ठे हो रहे हैं इस पॉइंट पे। कौन कौन से, X, Y और Z। यू कैन आस्क X, Y और Z यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ से रोटेशन होगी PP की और HP की, PP की उधर एंटी क्लॉक और HP की क्लॉकवाइज नीचे। तो इस पॉइंट से हम A तक कंपास खोलेंगे एंड वी रोटेट इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि लाइन हमारे पास PP एंटी क्लॉक इधर ले गए थे लेकिन प्रोजेक्शन इसकी इधर थी यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे इधर। अब आपके पास जो पॉइंट ZY पे जाके पहुंच गया, A भाई साहब अब आपके पास यहाँ पे पहुंच गए। ZY पे भी डिस्टेंस क्या होगा, A0, A0। क्लियर? लेकिन ये लाइन कितनी है, ये लाइन तो पैरेलल, नॉट ऑन PP, ही सेड दैट इज पैरेलल टू PP। तो जब PP के पैरेलल लेके आ रहा हूँ इधर मैं इसको जब मैं इस लाइन को पैरेलल टू PP इधर लेके आ रहा हूँ ऐसे,
तो मैं क्या लेके आ रहा हूँ, इसका प्रोजेक्शन 90 डिग्री इधर, ठीक है। तो ए यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन चाहिए हमें इस प्रोजेक्टर के ऊपर, क्योंकि लाइन कहाँ लाई कर रही थी, एक्चुअली लाइन यू कैन सी है, एक्चुअली लाइन आपकी यहाँ लाई कर रही थी ऐसे। एक्चुअली आपकी प्रैक्टिकली इसको देखो साथ साथ, फिर और अच्छी तरह आपको ये चीज़ समझ आएगी। एक्चुअली आपकी लाइन ऐसे लाई कर रही थी, क्लियर यहाँ तक। तो आपकी अगर लाइन ऐसे लाई कर रही है सपोज, तो मैं इसको 90 डिग्री इधर देख रहा हूँ, तो इट मीन्स कहाँ देख रहा हूँ, सेम प्रोजेक्टर पे जहाँ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आ रहा है, तो सेम प्रोजेक्टर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का ये है, तो इट मीन्स वो लाइन यहाँ पे आनी चाहिए। तो इसलिए मैं क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ तो ले आया, लेकिन 90 डिग्री इसको इधर देख रहा हूँ, तो इट मीन्स इसका 90 डिग्री प्रोजेक्शन है, अब यहाँ से इधर ले गया। सो वेयर इट कट ऑन दैट प्रोजेक्टर, here locate the point definitely A in which view, top view। तो यहाँ पे आपके पास टॉप व्यू का पॉइंट A लोकेट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा लोकेट हो जाएगा, टॉप व्यू का पॉइंट A आपका यहाँ पे लोकेट हो जाएगा। एंड व्हाट इज द लाइन, दैट इज फ्रॉम A to B, एंड ड्यू टू दैट मैं लाइन को अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए टॉप और B। सो दिस इज फ्रॉम A to B, we have a straight line projection in the front view, in the top view also। तो it means इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, that is the projection in straight line of this line in the front view, this one। और इस केस में ये जो ब्लैक लाइन नजर आ रही है, that is the projection of your straight line, but that is in the top view and it is lie on the HP। HP पे लाएगी, रोटेट किया तो वो नीचे चलेगी हियर टू हियर। और इसमें ये जो ब्लू लाइन आपको साइड व्यू में नजर आ रही है, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर लाइन ऑन PP, एंड दैट इज ऑन PP एंड दैट इज इन द ट्रू लेंथ। क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट लाइन पैरेलल टू PP। देखो है क्या, एक लाइन ही है, कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है। एक्चुअली दिस इज द इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्लियर। सो है क्या, 2-3 लाइनें हैं, बट द कॉन्सेप्ट इज सो मच लॉन्ग, ठीक है। कैसे ड्रॉ करना है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे आएगा, ये चीजें, ये प्रोजेक्शन समझनी बहुत जरूरी है अच्छी तरह, अगर आप इसको अच्छी तरह ड्रॉ करना चाहते हो। तो इट मीन्स दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द लाइन, एंड दिस इज द साइड व्यू। यू कैन से दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द टॉप व्यू ऑन विच प्लेन HP, and this is your what, this is your side view on which plane, profile plane, and in the side view that is as a true length, and in the front and top both are as a what, both are as a NTL, not true length, because the line making the angle with VP as well as from this side, this is from HP, clear। and in that case, अब इसमें हुआ क्या, इस केस में क्या हुआ, प्रॉब्लम अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगी, इस केस में प्रॉब्लम ये बनेगी, वी हैव ए लाइन AB and one of its point A lie on HP and other lie on VP, ठीक है। अभी अपन मैं डिस्टेंस नहीं दे रहा, other lie on VP and the line parallel to PP, क्लियर। तो इन दैट केस डेफिनेटली लाइन की ज्यादा वो फिर ट्रू लेंथ देगा। इस केस में उसने ट्रू लेंथ दी होगी, सपोज दैट इज 70 mm लॉन्ग एंड 1 पॉइंट ऑन HP and other on VP, clear। और मे बी ही कैन गिव सम एंगल फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर, VP से अगर यहाँ से देगा तो HP से एंगल देगा, यहाँ से देगा तो वो VP, यहाँ से देगा तो वो HP का एंगल देगा, यहाँ से देगा तो वो VP का एंगल देगा। द लाइन मेकिंग द एंगल विद HP एज वेल एज VP, वो कह सकता है, क्लियर यहाँ तक। तो ये सारा केस ऐसे ड्रॉ होगा, क्लियर। लेकिन इफ यू सेट इसमें 2-3 केस बन जाएंगे। अगला केस इसमें क्या बन सकता है, यही समझो। इफ यू सेट, ताकि अभी समझ जाए तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इफ यू सेट द होल लाइन कंटेन्ड ऑन PP, अब अगर वो कह रहा है कंटेन्ड है, जैसे HP के साथ कंटेन्ड होती थी, VP के साथ कंटेन्ड होती थी, ऐसे ही अब वो ये कह रहा है कि नाउ योर होल लाइन कंटेन्ड ऑन PP। तो जब पूरी लाइन कंटेन्ड ऑन PP होगी तब भी वो प्रोफाइल प्लेन के साथ डेफिनेटली पैरेलल होगी, क्योंकि A और B का डिस्टेंस दोनों का 0-0 होगा। When the both distance A and B from any plane, then that line is parallel to that plane, and when that line is parallel to any plane, then its true length lie on it. So in that case, again its true length lie on PP, and when we rotate the PP, then that is like this one, then that is again like this one.
So if we set the one point A on HP and other on PP or other on VP and the whole line contained on PP, तब भी साइड व्यू ऐसे ही ड्रॉ होता, तब भी ट्रू लेंथ ड्रॉ करते और साइड व्यू ऐसे ही ड्रॉ होता। बट फिर फ्रंट और टॉप में चेंज आता, फ्रंट और टॉप में चेंज क्या आता, सी है फ्रंट में अगर पूरी लाइन कंटेंट ऑन पीपी है तो जहां पीपी खत्म हो रहा है वहां पीछे कौन सा प्लेन है, वहां पीछे जेड वाई प्लेन है, तो फ्रंट व्यू इसका कहां दिखता, पूरा जेड वाई के ऊपर। सो व्हेन द लाइन इज कंटेन्ड ऑन पीपी देन डेफिनेटली इट्स फ्रंट व्यू लाई ऑन वेयर, इट्स फ्रंट व्यू लाई ऑन द जेड वाई लाइन हियर, फ्रंट व्यू यहीं पर लाई करता नजर आएगा, क्लियर। और जहां पीपी खत्म हो रहा है नीचे अगेन जेड वाई प्लेन है एचपी के साथ मिला हुआ, तो फिर टॉप व्यू भी इस केस में कहां देखता, टॉप व्यू भी डेफिनेटली फिर जेड वाई लाइन के ऊपर ही आपको यहीं पे नजर आ जाता, हियर टॉप व्यू भी यहीं पे नजर आ जाता जेड वाई के ऊपर। सो इट मींस इन दैट केस व्हेन ही सेड द लाइन इज कंटेन्ड ऑन पीपी देन डेफिनेटली इट्स फ्रंट व्यू as well as top view both are lie on zy plane and the true length parallel to PP, so due to that its true length in the profile plane यहाँ पे नजर आती है। ये सेकंड केस हो जाता है। इसमें थर्ड केस नहीं हो सकता था एक। अब थर्ड केस और क्या हो सकता था, लिसन, थर्ड केस में वो ये कह सकता था सो डस्टर हैविंग 20 mm फ्रॉम HP, डस्टर HP से 20 mm अब ऊपर चला गया, ध्यान से समझना, डस्टर हैविंग सम डिस्टेंस एंड दैट इज 20 mm फ्रॉम HP, तो ये जो पॉइंट ए है अब 20 mm HP से ऊपर चला गया। अगर ए पॉइंट 20 mm HP से ऊपर है तो डेफिनेटली इधर साइड में जो ए दिखता वो भी यहाँ पे 20 mm अबव XY नजर आता, 20 mm जहाँ HP बीट कर रहा है पीछे PP है उसके पीछे PP दिख रहा है, तो PP पे वो पॉइंट भी 20 mm अबव XY नजर आता है क्योंकि जहाँ HP बीट कर रहा है वहाँ XY है। तो इट मीन्स फिर ए पॉइंट in that case the A point is lying here, A is what, A is here now and that is at what distance, if that is here now A and that is at what distance A double dash, that's at that is 20 mm above HP and here he is asking B is again not on BP, जैसे A HP पे नहीं लाई कर रहा था और ऐसे वो कहता कि B भी अब AHP पे नहीं लाई कर रहा, अगर वो कह रहा तो ऐसे वो कह रहा है कि B भी आपका जो है वो VP पे नहीं लाई कर रहा, B also having 10 mm in front of VP और B के बीच में ये जो डिस्टेंस है that is again suppose 10 mm from VP ये वाला, तो डेफिनेटली उसमें ZY के ऊपर फिर हमें B नहीं दिखता, ZY से 10 mm हमें इस तरफ नजर आ जाता, that is 10 mm in front of VP, it means that is here suppose B डबल डैश 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो फिर B ZY के ऊपर ना दिख के B हमें कहाँ नजर आता, B हमें यहाँ नजर आ जाता, दैट इज B डबल डैश, क्लियर, एंड दैट डिस्टेंस इज हाउ मच, दैट इज सपोज ही सेड दैट इज 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP, क्लियर, समझेगा। एंड इफ ही सेड इन दैट केस द लाइन कंटेन्ड ऑन PP, अब दोनों डिस्टेंस ना HP पे है ना VP पे है, बट अगेन लाइन कंटेन्ड ऑन PP के साथ चिपकी हुई है ऐसे, देन इन दैट केस वेयर इज इट्स फ्रंट व्यू, इन दैट केस इट्स फ्रंट व्यू इज हियर, फ्रंट व्यू A डैश यहाँ दिखता और ऐसे B डैश 20 mm अबव XY यहाँ दिख जाता, सॉरी नीचे A है तो A डैश यहाँ दिख जाता और B ऊपर है तो B डैश आपको यहाँ पे दिख जाता, तो लाइन हमें फ्रंट में फिर कितनी नजर आती है इन दैट केस व्हेन बोथ पॉइंट नॉट लाई ऑन HP and VP and the line contained on PP, तो फिर हमें जितनी रेड लाइन है उतनी ही नजर आती है। और ऐसे इसकी टॉप व्यू की प्रोजेक्शन लेते तो टॉप व्यू की प्रोजेक्शन देखो अब इस केस में कैसे जा रही है, Here is the green marker, so we have the top view projection and from that side we take that projection from top A, यहाँ पे B की आ जाती और now अब आपको यहाँ पे अच्छी तरह समझ आएगा देखो, तो now where the both planes are intersecting each other XYZ here on this point, तो यहाँ से कंपास लेके हम अब आपका B डैश डबल डैश नॉट यहाँ पे आ गया, तो XYZ से B डबल डैश नॉट तक हम ओपन द कंपास फ्रॉम XYZ टू B डबल डैश नॉट तक हमने कंपास ओपन किया लाइक दिस and rotate it what, rotate in clockwise direction because we rotate the HP into clockwise,
तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। अब आपके पास बी यहाँ चला जाएगा, और ऐसे ही एक ही प्रोजेक्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो एक ही प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ पे आ जाता है ए डबल डैश नॉट इन दैट केस। तो एक्स वाई जेड से ए डबल डैश नॉट तक कंपास ओपन रोटेट होती और ये यहाँ पे आ जाती है। सो ए यहाँ पे आ जाता है। इट मीन इन दैट केस अगर मैं ग्रीन लाइन फॉलो करूँ और रेड लाइन फॉलो करता हूँ, सपोज अगर मैं दोनों रेड फॉलो करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, फ्रंट और टॉप में दोनों रेड फॉलो करता हूँ मैं जेड वाई के ऊपर, तो हमारे पास फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ये आता है। और इन केस में भी लाइन एंटी आ जाती है, फ्रंट में भी टॉप में भी, बिकॉज लाइन मेकिंग द एंगल इज व्हाट मेकिंग द एंगल इज यू कैन सी फ्रॉम एचपी एंड आल्सो मेकिंग द एंगल फ्रॉम दिस साइड वीपी। क्लियर? तो इस केस में ये फ्रंट, ये टॉप और ये फ्रंट नजर आता है रेड वाला। क्लियर? एंड इन दैट केस क्या था, द पॉइंट ए इज 20 mm above HP and 10 mm in front of VP. B. A is 20 mm above HP and B is 10 mm in front of VP and the line contained on PP. तो PP पे ट्रू लेंथ आ जाती है और रोटेट करते तो वो ऐसे नजर आती है आपको। क्लियर? और इसका फ्रंट व्यू कहाँ आता? इसका फ्रंट व्यू आपका ZY के ऊपर ही A डैश B डैश और A और B नजर आता है ऐसे। क्लियर? बट अगेन इन दैट केस डिस्टेंस आर सेम। थर्ड केस इसमें क्या बन सकता है? थर्ड केस इसमें ये भी बन सकता है, फोर्थ केस का लोग ये भी बन सकता है, द डिस्टेंसेस आर सेम 20 and 10 बट नाउ द लाइन नॉट कंटेन्ड ऑन PP, लाइन PP के साथ कंटेन नहीं है, दैट इज अगेन 40 mm इन फ्रंट ऑफ PP। तो वो अगेन कह रहा है PP से 40 mm इधर है और ये डिस्टेंस भी कितना है, ये डिस्टेंस भी 10 mm मेंटेन हो रहा है इधर से, यहाँ से अगर मैं इस डिस्टेंस को रखना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको रखता हूँ सपोज दिस थिकनेस इज सपोज 10 mm, तो ये 10 mm PP से इधर रोटेट हो रहा है ऐसे, लाइक दिस, ऐसे जा रहा है। सपोज ये 10 mm डिस्टेंस है इसकी थिकनेस का, 10 mm फ्रॉम PP and 20 mm from HP and whole line is parallel to PP and 40 mm in front of PP, 40 mm away from PP. So in that case definitely side view में true length आती है, ऐसी आ जाती है 20 और 10, but now front view not on ZY line. Now where is its front view? Now its front view again fall on the 40 mm away from ZY, तो front view इधर चला जाता है। It means in that case the front view is here and the top view is again here because we see both planes are 90 degree to each other. तो इस केस में फिर आपको 40 mm ZY से इधर जो डिस्टेंस दिख रहा है वो हमें इधर जो अब आपको रेड वाला A डैश और B डैश नजर आ रहा है और इधर आपको टॉप वाला जो A और B नजर आ रहा है वो आपका फ्रंट और टॉप व्यू होता है। एंड अगेन बोथ आर अगेन एज ए NTL not true length because the line is again inclined to both HP as well as VP. क्लियर? तो इस केस में आपको टॉप और फ्रंट यहाँ नजर आता है when the A point is 20 mm above HP and 10 mm in front of VP and the whole line is parallel to PP but 40 mm away from PP. Clear? So this is the concept when the line is parallel to PP. आपको PP के ऊपर कंटेन भी हो सकती है, 40 इधर भी हो सकती है, एक पॉइंट HP दूसरा VP पे भी लाई कर सकता है, दोनों HP और VP पे भी लाई कर सकते हैं और दोनों अबाव HP और अबाव VP इन फ्रंट ऑफ VP भी हो सकते हैं, मींस इन फ्रंट ऑफ VP और अबाव HP भी हो सकते हैं। क्लियर? तो मैंने इसमें जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो चारों ही पॉसिबिलिटी आपको करके मैंने कवर कर दी है। व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू PP और मे बी कंटेन्ड ऑन PP. Clear? So this is the profile plane and that plane is used for find out the side view of your object. Clear? तो अगर आपको इसमें फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है you can message me, you can call me. ठीक है, आपको और अच्छी तरह समझाने की मैं कोशिश करूंगा। वैसे मैंने पूरी डेप्थ में आपको समझा दिया, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है then you can call me, you can message me, you can text message me also. Clear? So then I will try कि आपको और अच्छी तरह इसका वीडियो बना के मैं भेज सकूँ। ठीक है, सो दिस इज योर प्रोफाइल प्लेन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोफाइल प्लेन इन दिस
in this lecture, ठीक है. And today is the end of that lecture, ठीक है. आज यहीं तक ही, ठीक है. टुडे इज ऑलरेडी संडे, ठीक है. तो संडे को भी हमने क्लास की छुट्टी दी थी, ठीक है. वर्क इज मस्ट, तो हम संडे को भी लेक्चर ले रहे. तो इसलिए आप सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट है, रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर से भी रिक्वेस्ट है, और सभी स्टूडेंट को भी मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस लेक्चर का लिंक, इन वीडियोस का लिंक और इस यूट्यूब का लिंक अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में और टीचर्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि जो बच्चे घर पे बैठे हैं लॉकडाउन के दौरान वो इजीली इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर पाए. सो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक्स अ लॉट.